Okay, dear students, I welcome all of you in the Director School Education Jammu online home classes. Myself is Imtiaz Mughal from district Poonch, teacher, Government High School Sinai, and my today's topic is the points of differences between plant cell and animal cell. Dear students, we have earlier discussed fully about what is a cell. We know that cell is the basic structural and functional unit of life. And we also have discussed that cell consists of many cell organelles inside it. And each cell organelles has some functions and different structures. Every cell organelle is a bonded body, a bonded cell organelle. So, the structure of function of each cell organelle is different, and the cell is the basic structural and functional unit of life. The life in this universe is due to the basic unit cell. We have discussed there are multicellular organisms, there are unicellular organisms, the organism made up of only single cell, the organism made up of many cells. We have discussed eukaryotic cell, prokaryotic cell, eukaryotic cell, the cell in which nucleus is well organized body is known as eukaryotic cell, and the nucleus, the cell in which the nucleus is not fully developed, and the nucleide or the nucleic material, that is RNA and DNA, is open in the cytoplasm of the cell, and that cell are known as prokaryotic cell. The word pro means false and caryon means nucleus. So the prokaryotes in which the nucleus is not fully developed. Similarly, the word eukaryotes, eu means true and karyon means nucleus. The cell in which the nucleus is well developed and bonded by a nuclear membrane is known as eukaryotic cell. So all these aspects we have discussed earlier in my video, but today I want to tell you that why we are different from each other. Being a living organism on this earth, on this universe, plants are different and animals are different. So the behavior and color both are different. Then why? The answer is that the difference is not in a developed body, in an individual, but the differences are in the beginning of that life, that is cell. The differences are in the cell. So whenever we grow, we see different plants in different colors, different tastes, different types of flowers, different types of leaves, and different types of their fruits. Even in plants, plant kingdom. So it means that there is difference in the basic unit, that is cell. So today we will discuss about the differences between plant cell and animal cell, and this is a very important question for you, particularly for class 8th, 9th and 10th. What are the differences between plant cell and animal cell? Distinguish between plant cell and animal cell. So the plant cell and animal cell are different in both aspects. That is, structurally they are different, and according to the cell organelles they are different. There are many similarities between for the point of cell organelles. Many cell organelles are present in plant cell and also in animal cell, but
The many cell organelles are present in plant cell but absent in animal cell. Similarly, some cell organelles are present in animal cells and absent in plant cell. So why the plants and animals are different? So you have to take a notebook and a pen while observing me, while listening my lesson, and you must point out the difference between plant cell and animal cell, and you must write down. I shall try to tell you approximately 5 or 6 main differences between plant cell and animal cell. First of all, you will see here I have drawn plant cell and animal cell. So physically you can imagine that plant cell is large and animal cell is small in size. This is point 1, and you have to write down. Plant cell is large in size and animal cells are generally smaller in size as compared to the plant cell. This is first difference. Now, the other difference is in plant cell there is large vacuole, food vacuole, in which cell sap is stored. You see here, this is large food vacuoles in which cell sap is stored. So, food vacuole occupies at least 50 to 60% of the area of the cells. So, due to this large size food vacuoles, the nucleus is pushed towards the corner and the nucleus becomes acentric. So, the next point is nucleus is acentric in plant cell while nucleus is centric in animal cell. So, number 2, food vacuole is large and food vacuole is small in size and temporarily. तो फूड वैक्यूल जो है इनका काम है फूड को स्टोर करना प्लांट सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ इसका साइज बड़ा है, इनका साइज छोटा है. ये वैक्यूल परमानेंट होता है और ये वैक्यूल टेम्परेरी होता है. अब फूड वैक्यूल्स के बड़े होने की वजह से प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर से हटकर एसेंट्रिक हो जाता है. ये पॉइंट आप लिख सकते हैं डिफरेंस में, न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट एसेंट्रिक. तो देन आप देखिए, आप सिमिलरिटीज तो हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप डिफरेंसेस नोट कीजिए. अब देखिए दूसरा यहां पर प्लास्टिड, दैट इज कलर बॉडीज, जो प्लांट्स को कलर देते हैं. अब देखिए मेरे हाथ को भी आप देखिए, बाजू को देखिए और इस पंपकिन को भी आप देखिए. ये ग्रीन है और मेरा बाजू जो है ये ग्रीन नहीं है. क्यों? कि ये प्लांट सेल से बना है और प्लांट सेल में क्या होता है? प्लास्टिक, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, यानी कलर बॉडीज होती हैं. दैट इज दीज प्लास्टिक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट gives colors yellow, orange, red, etc. Then leucoplast no color, without any color, and chloroplast which gives green color. So this particular cell organelles, ये cell organelles, इसको आप याद रखिए. इसी की वजह से हम नीले पीले काले नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कलर में हम नजर नहीं आ रहे हैं. यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो प्लांट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम में नहीं आ रही हैं. वो इसी वजह से नहीं आ रही हैं कि यहाँ पर ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है. तो इसके लिए स्पेशली मैं एक लेसन बाद में लूंगा आपको. ये क्लोरोप्लास्ट जो है, प्लास्टिड इनको कहते हैं. ये 3 किस्म की बॉडीज होती हैं इसमें, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. तो ये कलर बॉडीज होती हैं, ये प्लांट सेल में होंगी. यहाँ पर मैंने ये आपको इंडिकेट किया कि ये एब्सेंट है. यहाँ पर ये एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है. तो क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं डिटेल में आप जो बाद में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये देखिए आप, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर
internal membrane space between two membrane, and these are thylakoids, and these are lamella, and these are grana or granum. So dear students, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये यहाँ पे absent है, ये आप पॉइंट नोट करिए. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड क्लोरोप्लास्ट इज absent इन एनिमल सेल. अब देखिए यहाँ पर सेल वॉल, सेल साइटोप्लाज्म के बाद सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल. यहाँ पर आपको सेल वॉल दिखाई दे नहीं रही है, यहाँ पर सेल वॉल है, तो आप लिखें यहाँ पर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज absent इन एनिमल सेल. तो सेल वॉल के बाद यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है. तो साइटोप्लाज्म तो चलो दोनों में होगा. अब देखिए आप यहाँ एक पॉइंट और है कि जो गोल्गी बॉडीज हैं, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस इनको हम कहते हैं, ये दोनों में होती हैं, लेकिन इनकी शेप की वजह से, इनके साइज की वजह से इनके नाम जो है चेंज हो गए हैं. गोल्गी बॉडी आपको यहाँ पर टेलीफोन रिसीवर स्ट्रक्चर जो है ये नजर आ रहा है, ये गोल्गी बॉडीज इनको हम कहेंगे एनिमल सेल के अंदर. लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे यहाँ स्मॉल यूनिट्स होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, और इन यूनिट्स को कहते हैं डिक्टियोसोम. स्मॉल यूनिट है, ये गोल्गी बॉडीज का फंक्शन कर रही हैं, लेकिन इनको कहेंगे डिक्टियोसोम क्योंकि ये रिसीवर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर स्मॉल यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट, तो इनका नाम इसी वजह से चेंज हो गया है. इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में होगा. अब बात रही है सेंट्रोसोम की. सेंट्रोसोम जो है ये एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं होती है, सेल ऑर्गेनेल. तो सेंट्रोसोम जो है जब हम क्रोमोसोम डिवीजन, सेल डिवीजन वगैरह हम पढ़ते हैं बाद में हाई क्लासेस में, आप जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो वहां स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो सेंट्रोसोम जो है ये देखो, सेंट्रोसोम जो है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है. ये आपने सिंपल पॉइंट लिखना है अभी. तो सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स होते हैं, एब्सेंट इन प्लांट्स, एनिमल सेल में जो है प्रेजेंट होते हैं. ये स्पिंडल फॉर्मेशन जो होती है क्रोमोसोम जो सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं माइटोसिस मियोसिस, उसमें ये स्पिंडल फॉर्मेशन जो होती है ये सेंट्रोसोम की वजह से होती है. सेंट्रियोल जो है अगर इसको हम अलग करेंगे तो इस किस्म का शेप जो है बनता है. आप जब सेल डिवीजन करते हैं 11th-12th क्लासेस में या बड़ी क्लासेस में, तो वहां पर आप मियोसिस माइटोसिस पढ़ते वक्त आपको ये सेंट्रियोल का लफ्ज जो है वो सुनने को आएगा. तो वहां पर आप देखेंगे कि ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में ये एब्सेंट है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ खास जो है पॉइंट्स थे जो आपको हमने आज बताने थे. तो इसी लिहाज से आप अगर हम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, जैसे कलर बॉडी, क्लोरोप्लास्ट मैंने कहा, देखो प्याज है, इसका एक अलग से कलर है. ये पंपकिन है, इसका एक अलग से कलर है. लीव्स है प्लांट्स के, वो अलग अलग कलर के होते हैं. वो इसी वजह से कि वहां पर प्लास्टिक बॉडी जो है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 किस्म की बॉडी जो वहां पे मौजूद होती है. किसमें? प्लांट सेल के अंदर. तो बहरहाल आज जो है आपको मैं कुछ पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये एक टेबल की फॉर्म में मैं आपको पॉइंट्स दोबारा लिखाता हूं. ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा. डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये आप नोट कीजिएगा. यहां मैं एक टेबल बनाता हूं. यहां लिखते हैं हम प्लांट सेल, यहां लिखते हैं हम एनिमल सेल. पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 1, लिखें आप प्लास्टिड्स, plastic bodies, that is chromoplast, chloroplast and leucoplast.
are present in plant cell. In general, then रेयर केसेस में कुछ चीजें जो है प्लांट सेल की जो होती हैं वो एनिमल सेल में पाई जाती हैं, जैसे यूग्लिना विरिडिस है या फंगस बॉडीज हैं कुछ तो। लेकिन इन जनरल हम जो है डिफरेंसेस आज नोट कर रहे हैं। रेयर केसेस में आपको कुछ एनिमल्स मिलेंगे जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है प्लांट्स के लिए। तो अब देखिए प्लास्टिड्स बॉडीज दैट इज क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्लास्टिड bodies that is chromoplast, chloroplast and leucoplast are absent। ये आपका एक डिफरेंस हो गया। नंबर 2 डिफरेंस क्या आ जाएगा, गोल्गी बॉडीज are in small units and are known as dictyosome। Dictyosome, DICTYOSOME, dictyosomes। dictyosomes सोम्स कहते हैं बॉडी को साइंटिफिक लैंग्वेज में। यहां देखिए गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट, गोल्गी बॉडीज आर प्रोमिनेंट, अच्छे तरीके से पहचानी जाती हैं, एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड, अच्छे तरीके से पहचानी जाती हैं इन द टेलीफोन रिसीवर, ओल्ड टेलीफोन रिसीवर लाइक स्ट्रक्चर। नंबर 3, प्लांट सेल के अंदर फूड वैक्यूल इज लार्ज। तो यहां रहेगा नंबर 3, फूड वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड आर टेम्परेरी, बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, एंड आर टेम्परेरी। अब हम आते हैं नंबर 3 हो गए हैं, नंबर लिखते हैं यहां पर 4। चौथा डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स are absent in plant cell ये एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल are present in animal cell, which help in
spindle formation. During cell division. अब देखिए आप, ये पॉइंट हो गया आपका 4। पांचवा पॉइंट आप देखिए, पॉइंट 5 आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस का। सेल वॉल is present in plant cell outside the cell membrane, cell membrane के बाहर। Cell wall is absent. Cell wall is absent in animal cell the outermost covering is cell membrane। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। outermost covering of animal cell is known as cell membrane। ये आ गया पांचवा पॉइंट आपका। अब छठा पॉइंट आप देखिएगा यहाँ पे, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आप लिखिए, 6 एंड लास्ट आप पॉइंट लिखेंगे आप, दैट इज प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? ड्यू टू लार्ज फूड वैक्यूल, the nucleus is acentric in plant cell। The nucleus is in the center always in plant cell, in animal cell, sorry, in animal cell। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इन चीजों को जो है वो नोट कर चुके होंगे। और एक और जो अगर साइज मैंने नहीं लिखा तो साइज ऑफ द प्लांट सेल इज लार्जर, साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ प्लांट सेल इज लार्ज। तो एनिमल सेल का साइज क्या है? द साइज ऑफ एनिमल सेल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू प्लांट सेल, एज कंपेयर्ड टू प्लांट सेल। ये 7 पॉइंट आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस रखेंगे डिफरेंस। तो यही वजह है कि प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो है डिफरेंस है। तो ये पॉइंट जो खास करके आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो एसेंट्रिक है, फूड वैक्यूल जो है वो बड़ा है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटा है। देन सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल विच हेल्प इन द स्पिंडल फॉर्मेशन एंड सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल।
Then also cell wall is present in plant cell, and cell wall is absent in animal cell. Chloroplast or color bodies or plastids are present in plant cell and absent in animal cell. So, in spite of having many similarities, these are the points of difference. Hope you will understand. And thank you very much for this video lesson. Next, I will go also for the next part of this cytology. We shall study one by one the structure and function of cell organelles. Okay, thank you very much. Stay home, stay safe.